وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وجاء عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فيما يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنا كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا حتى إذا نزل القرآن وذكرهن الله وقسم لهن ما قسم رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من على جاريتين بنتين حتى تبلغا جاء هو وأنا يوم القيامة كهاتين. مسجد و مدرسہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش نگر کرلا ایسٹ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اس مسجد کے فاضل امام و خطیب برادر محترم حضرت الشیخ مصلح الدین فیضی حفظہ اللہ، آج کی اس سالانہ کانفرنس میں یا آج کے سالانہ اجلاس میں طالبی مظاہرے کی مناسبت پر جو اجلاس منعقد ہوا ہے، اس اجلاس کے فاضل خطیب ہمارے بہت ہی زیادہ محترم مکرم عقید و منہج اور سلفیت کے لیے بہت ہی زیادہ فعال، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، برادر گرامی فضیلت الشیخ الدکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں تشریف فرما اطراف کے جوانب کے ہمارے فاضل علماء کرام، بزرگ علماء کرام، ائمہ مساجد، دعات، علماء، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اور آج چونکہ مدرسے کا سالانہ تعلیمی مظاہرہ بھی ہے اور میں پوچھ نہیں سکا کہ کتنے بچے کتنے بچیاں زیر تعلیم ہیں، لیکن سرگرمی تعلیمی تربیتی دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں اس پر ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں، امام صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں جو مسجد میں مکتب کا انتظام کیے ہوئے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تعلیم و تربیت کا جو طریقہ مسجدوں میں چل رہا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا، اس میں بہت کچھ تبدیلی آ گئی ہے اور مکاتب کی جگہوں پر اس وقت انٹرنیشنل، نیشنل، گلوبل اسکولوں میں لے لیا اور اس کا بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اس کا یہ موقع تو نہیں ہے کہ اس پر ہم لمبی بات کریں، کیونکہ موضوع جو ہے آج کا الگ ہے اور وہ ہماری ماؤں سے، بہنوں سے متعلق ہے، خواتین سے متعلق ہے۔ تو مبارکباد کی مستحق ہے آپ تمام ذمہ داران جنہوں نے اس مسجد میں مکتب کا مناسب انتظام کر رکھا ہے اور باقاعدہ تعلیم کا، تربیت کا الحمدللہ اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اس میں جس حیثیت سے بھی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سنا، خواتین کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔ خواتین کے مقام اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق چند اہم باتیں، قرآن کریم کی چند آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے یہ موضوع منتخب کیا ہے ذمہ داروں نے،
اللہ تعالیٰ انہیں اس موضوع کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہماری مائیں بہنیں، خواتین اسلام، ملت کی مائیں بہنیں بیٹیاں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف خواتین کا عنوان ہے تو خواتین ہی اس کے مخاطب ہیں، خواتین سے متعلق موضوع ہے، لیکن خواتین چونکہ کسی بھی مرحلے میں زندگی کے بغیر ولی کے، گارجین کے ہوتی نہیں۔ اسلام کا بڑا ہی مستحکم نظام ہے کہ اسلام نے ایک خاتون کو عمر کے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اسے بغیر سرپرست کے، بغیر گارجین کے چھوڑا نہیں ہے۔ ہمیشہ گارجین ہی کی نگرانی میں عورت رہے گی، خاتون رہے گی، چاہے وہ بچی ہو یا بچی کے بعد دھیرے دھیرے پل بڑھ کر کے جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، حتیٰ کہ عمر ہو جانے کے بعد بھی بغیر گارجین کے، بغیر ولایت کے عورت کو اللہ نے چھوڑا نہیں۔ یہ اسلام کی جو بہت ساری عظمت کی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم مثال ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب خواتین کا مقام اگر ہم بات کریں تو دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور اس کے بعد ذمہ داریوں پر زیادہ بات کرنی ہے ہمیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، عورت جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا اور دنیا کے سماج کا آدھا حصہ ہے، کم سے کم آدھا، زیادہ اگر نہ مانے تو کم سے کم آدھا۔ قرب قیامت کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی شرح زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے جو کچھ باتیں بھی ہمیں اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل رہی ہیں، اس میں اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب شرح زیادہ ہو جائے گی تو ان کا اہتمام بھی زیادہ کرنا ہوگا، اور انہیں اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر اتنی ساری دلیلیں ہیں، جس میں سے ہو سکتا ہے دو چار باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس میں خواتین کا مقام بیان کیا گیا ہے، ان کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، عملی شواہد موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ صرف اشارہ سمجھیں کہ اسلام میں خواتین کا مقام، اسلام سے پہلے خواتین کا معاملہ کیا تھا۔ ظاہری کی حالات بہت خراب تھے، اب اسے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ یونان میں عورتوں کا کیا حال تھا، روم میں عورتوں کا کیا حال تھا، یہ ہمارا وطن ہندوستان، اس میں پرانی تہذیب میں عورتوں کا کیا حال تھا، پھر عرب کے اس خطے میں، عرب کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس کا نقشہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا۔ عورت کو لوگ انسان ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ اس کو وحشی سمجھتے تھے، درندہ سمجھتے تھے، جانور سے بھی بدتر سمجھتے تھے، اسے موذی جانور، سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا سمجھتے تھے، بلکہ انہیں خوخار اور خطرناک سمجھتے تھے۔ اس طرح کی حالت تھی، تو سب منظر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام عطا فرمایا، اور اسلام کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے عورتوں کو، جنہیں مختلف سماج میں، مختلف مذاہب میں، ادیان میں بہت زیادہ انہیں کہہ لیجیے کہ حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا، ان کی تنقیص ہوتی تھی، ان کی توہین ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نکال کر کے اسلام میں قرآن میں، سنت میں اسے اونچا مقام عطا فرمایا۔ بالکل سرسری طور پر اشارہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں میں عورتوں کے بارے میں کیا سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو، یعنی اسلام سے قبل عربوں کے ماحول میں بات ہو رہی ہے، جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی، کس کی؟ بالانثیٰ، بچی کی خوشخبری، بھئی آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، آپ کے یہاں بیٹی آئی ہے نا، یہاں مہاراشٹر کے ماحول میں لوگ کہتے ہیں کہ لکشمی آئی، یعنی بچی پیدا ہوئی، اس کا مطلب اب پیسے اور مال اور انکم میں کافی بڑھوتری ہو جائے۔ خیر ٹھیک ہے، لوگوں کی اپنی سوچ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق طے کر رکھا ہے، کم زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ ہر آدمی، بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، خاتون ہو، پیدائش کے ساتھ ہی اس کی روزی لکھی ہوئی آتی ہے، رزق ہو، اجل ہو، عمل ہو، شقی ہو، سعید، چار باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے رزق بھی ہے، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، کم ملنا ہے، زیادہ ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاعَهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر ریگنے والے، ہر چلنے والے کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
बहरहाल मेरे भाइयों, इन अल्लाह, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी के लिए रोजी लिमिटेड कर देता है, किसी के लिए कुशादा कर देता है। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, किसी के लिए कुशादा रोजी और किसी के लिए तंग रोजी, अल्लाह ताला की मशीयत और मर्जी। उसमें पढ़े लिखे और ऐसे ही फला बिरादरी, फला जात, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला का निजाम है, जिसको ज्यादा लिखा वो ज्यादा पारा, जिसको कम लिखा वो कम पारा। अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए, हलाल की तलाश करनी चाहिए, हराम की तरफ हरगिज नहीं जाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल तो औरतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब उन्हें उनसा बच्ची की बशारत दी जाती थी तो क्या कहते थे वो, क्या होता था, वल्ल वजहुहु मुस्वद्दन, तो सिर्फ खबर सुन करके कि बच्ची की पैदाइश हुई है, उसका चेहरा स्याह हो जाता था, उसका चेहरा काला पड़ जाता था। रंज, गम, है ना, हुज़्न, मलाल, टेंशन जिसको आज कहते हैं, इतना हो जाता था कि चेहरा काला हो जाता था। वो कज़ीम, और वो गम से निहाल हो जाता था, टेंशन में बिल्कुल मेरे भाइयों घिर जाता था। मसला क्या था, सोचता था अब क्या करे। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, अब जो खुशखबरी, आप सोचिए अल्लाह ने क्या फरमाया, जब खुशखबरी दी जाती है, और यहां क्या मसला था उनका, मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, उस खुशखबरी को इतना बुरा समझता था कि उसे बुरा समझने की वजह से इतनी बुरी खबर, बच्ची पैदा होने वाली हो गई है, बच्ची की खबर आ रही है, फिक्र में, टेंशन में क्या करता था, मिन सूइ यतवारा मिनल कौम के लोगों से छुप करके गिरता था, बच के चुप, कोई देख ना ले, कोई देखेगा तो ये देखो इसी के यहाँ बच्ची पैदा हुई, ये देखो इसी के यहाँ बच्ची पैदा हुई। यानी इतना बुरा हाल था इस्लाम से कबल मेरे भाइयों। तो क्या है, अल्लाह ने फरमाया अयुमसिकुहु अला हुन, अब वो सोचता था कि क्या करूं, दो ही ऑप्शन है, या तो जिल्लत, रुसवाई, लोगों के ताने तशरीह बर्दाश्त करके इस बच्ची को किसी तरह से पालूं पोसूं, इसकी देख रेख करूं, खिलाऊं पिलाऊं, और दूसरा ऑप्शन क्या है, अम यदुस्सुहु फी तुराब, या फिर उसे गड्ढा खोद करके दफना दूं, यही दूसरा ऑप्शन है। और आप सारा मंजर जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी सख्त मजम्मत फरमाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, जिसे जिंदा दफन कर दिया गया, जिस बच्ची को, जिस लड़की को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेगा, है ना, जब पूछा जाएगा, अल मौऊदा यानी बिला जुर्म के, बिला किसी वजह के इसे जिंदा दफन कर दिया गया, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस जुर्म की वजह से, किस गुनाह की वजह से इसको मार डाला गया। भाई ये पूरा मंजर कुरान करीम के आयत करीमा के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, ये अरबों की हालत, क्या करते थे वो, जिंदा दफन करते। तसव्वुर कर सकते, इंसान जो है ना मेरे भाइयों, किसी जानवर पर भी जीते जी गाड़ी नहीं चलाता जानबूझ करके, ड्राइवर भी लाख बचाता, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी जानवर की मौत ना हो जाए मेरे टायर के नीचे, मेरे पहिए के नीचे। लेकिन आप सोचिए कितनी वहशत थी, कितनी बर्बरियत थी जाहिलियत के अंदर, कि लोग अपनी बेटी को, सुन्नी बेटी को क्या करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये तो हालत थी जाहिलियत में औरतों के बारे में। अच्छा, तफसील में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस्लाम में आते हैं। अब इस्लाम जब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयतें उतारी, बहुत सारी आयतें औरतों के बारे में, पूरी सूरत सूरतुन निसा है, पूरी सूरत सूरतुन निसा है, औरतों के मसाइल, औरतों के नाम से एक सूरत सूरह मरियम है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से। बहरहाल इसमें खास बात जो है मेरे भाई वो ये है कि बहुत सारे अहकाम सूरतुल बकरा में, सूरत आल इमरान में, सूरतुल निसा में, मायदा में बहुत सारे अहकाम बयान किए गए। फिर आगे अगर आप जाएं तो सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में काफी तफसीली अहकाम, ख़वातीन के मसाइल, उनको हक दिया गया। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, सही बुखारी की एक रिवायत के शुरू के मैंने कुछ अल्फाज आपके सामने पढ़े, वो आपके सामने पेश करना है। वो क्या है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अमीरुल मोमिनीन का वाक़या बयान करते हैं, रिवायत सही बुखारी में है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में अमीरुल मोमिनीन के साथ में थे, और इत्तेफाक से कहीं रास्ते में पड़ाव डाला, उतरे, रुके कहीं कुछ तहारत वगैरह के लिए, इस्तिंजा वगैरह के लिए उतरे। और उसके बाद बहरहाल उसमें जो गुफ्तगू हो ये है कि अमीरुल मोमिनीन अली उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, क्या कहा उन्होंने कहा कि इन्ना कुन्ना फिल जाहिलियति ला नउद्दु निसाअ शैअन। इब्न अब्बास, जाहिलियत इस्लाम से पहले हम औरतों को तो कुछ शुमार ही नहीं करते थे, शुमार ही नहीं था कि औरत भी कोई चीज है। ला नउद्दु निसाअ शैअन, हम औरतों को कुछ भी काउंट नहीं करते थे।
कहते हत्ता इज़ा जाअल इस्लाम, यहां तक कि जब इस्लाम आया। अब मैं आपको ये टर्म बता रहा हूं, इस्लाम आया तो कैसे कैसे औरतों को हक दिया गया। शुमारी नहीं करते थे तो शुमार करना शुरू किया, तो शुमार करना शुरू किया तो उसकी क्या हद थी। यानी एक झटके में ये सारा मामला नहीं हुआ है, इस्लाम ने पूरे माहौल को धीरे 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 बदल दिया। उनके बहुत सारे अहकाम, बहुत सारे मकाम और दर्जे की बात, और उनके माली अहकाम, उनके समाजी अहकाम, उनके वरासत के अहकाम, उनके अपनी जात के, उनके अपनी नफ्सियात के सारे मेरे भाई हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने फराहम की। अब देखिए, कहते हम शुमार नहीं करते थे, हत्ता इज़ा जाअल इस्लाम, यहां तक कि इस्लाम आया। व ज़करहुन्नल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उन औरतों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह की किताब है, उसमें किसका जिक्र हो रहा है? औरतों का जिक्र हो रहा है। उनकी निकाह का मसला, शादी का मसला, तलाक का मसला, उनकी वरासत का मसला, उनके महर का मसला, सारे मसाइल बयान किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, कहते हैं यहां तक कि अल्लाह ताला ने जब उनके बारे में तज़किरा फरमाया कुरान करीम के अंदर, वह कसम लहुन्ना मा कसम, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ उनको बांट के दिया। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ क्या किया, उनको बांट के दिया, मीरास में और महर में और बहुत सारी चीजें। कहते हैं रअयना लहुन्ना बिज़ालिका अलैना हक़्क़न, तब से हम लोग जो है औरतों के बारे में उनका हक हम कहीं ना कहीं सोचने लगे, हमें ख्याल करना शुरू कर दिया कि औरतों का भी हक। ये देखो कुरान करीम में आयतें उतर रही, आयतें उतर रही, इनके मसाइल, उनके अहकाम, हुकूक बयान किए जा रहे हैं। कहते अब उसके बाद से हमने उनका हक जो है अपने ऊपर शुमार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक जुमला देखिए बड़ा अहम है, कहते मिन गैरि अन नुदखिलहुन्ना फी शैइन मिन उमूरिना, लेकिन उसके बावजूद कि उनका हक हम जानने लगे कि इनका मकाम अल्लाह दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपने किसी भी मामले में उनको इंटरफेयर नहीं करने देते थे। जब कोई मामला है, खरीदना है, बेचना है, यहां जाना है, वहां जाना है, ये फैसला वो फैसला, कोई इंटरफेयर नहीं। वो बीवी आए, मशवरा दे, नहीं तुम जाओ, तुम्हारा कोई दखल नहीं है, आप अपना काम करो। यानी हमने उनका मकाम तो समझा, लेकिन फिर भी अपने किसी मामले में उनको दखल नहीं देने देते थे। कहते एक दिन मामला क्या हुआ, कहते काना बैनी व बैन ज़ौजती कलाम, किसी मामले में मेरा और मेरी बीवी का कुछ तू में झगड़ा हो गया, बातचीत हो जाती। कहते हैं कि अब जब मेरी और मेरी बीवी की बातचीत होने लगी, यानी आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया, कशीदगी हो गई, तो कहते हैं फ़अग़लज़त लियल क़ौल फ़अग़लज़त लियल कलाम, मेरी बीवी बात करने में मेरे साथ सख्ती का अंदाज अख्तियार करने लगी। तो यहां अंदाज थोड़ा, यानी हक बन जाता है तो आदमी जरा गर्मी से बात करता है। कहते मेरी बीवी ने मुझसे बात की तो थोड़ा सख्त अंदाज में बात की। तो कहते हैं कि मैं जब सुना अंदाज तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी बीवी किस तरह से बात कर रही मुझसे। तो मैंने उससे कहा इन्नकी अंती लहुनाक, इन्नकी अंती लहुनाक, अरे तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुम आज सख्ती से बात करने लगी हो। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे आप डांट रहे हैं कि मैं सख्ती से बात कर रही हूं। अपनी बेटी के बारे में भी तो पता लगाइए, आपकी बेटी हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है। और कहने लगी कि आप उनके बारे में पता लगाइए, वो भी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अपने हुकूक और अपने मसाइल के बारे में बातें करती है। खैर, मुझे असल जो बात अर्ज करनी है वो क्या है कि इस तरह से इस्लाम ने औरत को उस जिल्लत से, पस्ती से, जिंदा दफना दिए जाने की लानत से अल्लाह ने बाहर निकाला। अब अगर इस पर हम जाए बात करने के लिए कि उनको हुकूक क्या दिए गए, तो बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, बहुत सारे हुकूक हैं। मैं सिर्फ इशारा करके मैं आगे बढ़ता हूं और हम बात करते हैं उनकी जिम्मेदारियों पर। अब जब अल्लाह ने उस जिल्लत से, पस्ती से निकाल करके अजमत और बुलंदी अता फरमाई है, तो अब उनकी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। जब किसी का मकाम ऊंचा होता है तो जिम्मेदारियां भी ऊंची होती हैं। और हमारी माएँ बहनें मजलिस में बैठी हुई हैं, आप सब बैठे हुए हैं, किसी न किसी हैसियत से सरपरस्त हैं, बाप है, भाई है, या फिर शौहर है, या फिर उनके बच्चे बैठे हुए हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस मसले को अपने घर में, अपने माहौल में और अपने घर बार में, खानदान में कहीं ना कहीं जहां इस तरह के हालात को वहां बरतने की कोशिश करें। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मिसाल आप सिर्फ ले लीजिए, एक है मिसाल किसकी, वरासत में हक देने की, मीरास का हक। मैं आपको एक बात बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं, और बहुत सारे यहां हमारे बड़े भी बैठे हुए, बुजुर्ग बैठे हुए, जिम्मेदार बैठे हुए, हमवर बैठे हुए, मैं आपसे एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि देखिए मीरास का जो निजाम कुरान करीम में उतारा गया ना,
वो औरतों को ही हक दिलाने के लिए उतारा गया। मीरास की आयतें क्यों उतरी जानते हैं आप? औरतों को हक मीरास दिलाने के लिए। मर्द तो ले ही लेते थे, बल्कि सारा हड़प कर लेते थे, औरतों को 1 रुपया भी नहीं देते थे। चाहे बच्ची हो, चाहे वो मां के दर्जे में हो, या बीवी हो, या बहन, कोई भी हो, औरतों को हक मीरास से महरूम करते थे, पूरा हड़प कर लेते थे। और अजीब अजीब सब कहानियां हैं उनकी। जैसे मौत की खबर मिली, फौरन भागा भागा आता और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर चादर डाल देता, पैसे पर, रुपए पैसे पर, सोने चांदी के सिक्कों पर, और कहता भाई मैंने चादर डाल दिया, ये सब मेरा है। या उस मुर्दे के ऊपर, उस खातून के ऊपर चादर डाल देता, इसका जो कुछ है सब मेरा होगा, कोई भी बात नहीं कर सकता। एकदम जबरदस्ती का मामला। इसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या कहते थे? बच्चों को क्यों दिया जाए? बच्चों की क्या ताकत है? वो तो अभी किसी हैसियत के नहीं है, ना हमारा डिफेंस कर सकते हैं, ना दुश्मन से हमें बचा सकते हैं, ना कमाई कर सकते हैं, ना घर चला सकते हैं, ना जंग जिहाद कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। क्यों बच्चों को दिया जाए? औरतों को क्यों दिया जाए? बच्चियों को क्यों दिया जाए? ये तो घर के अंदर बैठी हुई होती, इनका कोई काम नहीं, सारा लड़ाई हम लड़ते हैं, मेहनत हम करते हैं, कारोबार हम करते हैं, खेती बाड़ी हम करते हैं, इसलिए जिसका हक बनता है वो हम है, बस, और किसी को नहीं मिल सकता। तो आप सोचिए कि मीरास का जो हक औरतों को दिया गया, वो औरतों के लिए ही सारी आयतें उतरी हैं। और उसका मौका नहीं है, इशारा सिर्फ मैं करना चाहता हूं कि 1 से 2 वाकयात पेश आए, बाद सहाबे किराम के वाकयात। जंग उहुद के अंदर उन एक सहाबी रसूल की वफात हो गई, शहादत हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के साथ में कुफार से, मुशरिकीन से वो जंग कर रहे थे, शहीद हो गए। और जैसे ही उनकी शहादत की खबर मिली, फौरन उसका भाई फौरन आया और अपनी भाभी, कहते हैं ना आज, मेरे भाइयों, सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। और वो जिनकी शहादत हुई थी, उनकी ये बीवी, बेवा और उनकी 2 बच्चियां, ये 2 वारिसीन में थी। सारा पैसा ले लिया, कब्जा कर लिया। फौरन भाग करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फला बिन फला जो मेरे शौहर थे, आपके साथ जंग उहुद में शरीक थे, शहीद हो गए, और वफात के बाद ही, शहादत के बाद ही, है ना, उनके भाई आए और सारे माल पर कब्जा कर लिया। ना मुझे कुछ दिया, ना उनकी बेटियों को कुछ दिया। अभी मेरी बेटियां कैसे पलेंगी बढ़ेंगी और उनकी शादी वगैरह का इंतजाम कैसे होगा? कहते हैं वला युन कहानी वला तुम कहानी इल्ला बिमाल, इन दोनों बच्चियों की तो शादी हो ही नहीं सकती है, खर्चा लगेगा, पैसे कहां से आएंगे? और सारा कब्जा कर लिया। अल्लाह के नबी ने बुलाया, कहा अच्छा देखो तुमने कब्जा कर लिया, लेकिन 1 रुपया खर्चा नहीं करना, उतरने दो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की तरफ से इसके बारे में फैसला आने दो, उसके बाद ही तुम खर्च करोगे। समझ रहे? उसके बाद अल्लाह के कलाम की आयत करीमा उतरी, उसमें पहली बार ये कह दिया गया कि देखो सबका हक है, औरतों का भी हक है, मर्दों का भी हक है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो कुछ भी करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है उसमें मर्दों के लिए भी हक है, उसमें औरतों के लिए भी हक है। इसलिए खबरदार 1 रुपये खर्च नहीं करोगे, अल्लाह की तरफ से तक़सीम का फैसला आने दो, उसके हिसाब से खर्च करना। उसके बाद तफसीली आयतें उतरी, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़का। उसके बाद अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारा सिर्फ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पहले तो 2/3 माल उन दोनों बेटियों का है जिसको महरूम किया जा रहा था, और 1/8 बीवी का है। हाँ, उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सब ले लिया था कि नहीं ले लिया था? तो आयतें कुरान करीम के अंदर जो मीरास की उतरी है, मुफस्सिरीन ने वज़ाहत की है, इस सारी आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को हक दिलाने के लिए उतारी, मर्दों को नहीं। मर्द तो उसके मालिक बन बैठे थे और कब्जा कर लेते थे, 1 रुपया भी बच्चों को, औरतों को, दीगर रिश्तेदारों को देते नहीं थे। इतनी बात काफी है। ज़िनाकारी बदकारी का मामला कैसा था? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने बयान फरमाया कि जाहिलियत में निकाह के कई तरीके थे, कई तरीके, अक्सर तरीके ज़िनाकारी बदकारी के थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जिल्लत से, उस इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने से अल्लाह ने इस्लाम ने निकाला, और इस्लाम का वो निकाह का, शादी का वो निजाम जो पाकीज़गी, तहारत और नज़ाहत पर मुश्तमिल है, अल्लाह ताला ने वो निजाम बनाया। अलगर्ज़ कहने का मतलब ये कि बहुत सारे मसाइल हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को हक दिया। आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप देखिए शहादत और गवाही में भी उनकी हिस्सेदारी है कि नहीं? शहादत में भी हिस्सेदारी है उनकी। अब उसके खैर ज़ाब्ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत में उनको हक दिया है ना? अल्लाह तबारक व तआला ने फरजुल व इम्राअतान, अगर 2 मर्द गवाह न मिले तो 1 मर्द और 2 और गवाही देंगे।
कोई कीमत नहीं थी, जिनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया। खैर, अब जब औरतों का मकाम ऊंचा है तो जिम्मेदारियां भी ऊंची हैं, और सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बिल्कुल सरसरी तौर पर 2, 3, 4 बातों की तरफ इशारा करके अपनी बात को मैं मुकम्मल करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत महदूद है और जाहिर है कि काफी लंबा प्रोग्राम है। आप 3 बजे से 4 बजे से बैठे हुए हैं। देखिए, खवातीन की जो जिम्मेदारियां हैं ना मेरे भाइयों, उसकी कई किस्में। सबसे पहली जो किस्म है वो उसकी जिम्मेदारियां उसकी अपनी जात से मुताल्लिक है। पहली जिम्मेदारी किससे मुताल्लिक? खवातीन की जिम्मेदारियां उनकी अपनी जात से मुताल्लिक। जात का मतलब उनकी अपनी इज्जत, उनकी अपनी आबरू की हिफाजत, उनकी अपनी हया का, हिश्मत का मसला, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। और इस हवाले से जो बहुत बुनियादी बात है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह ने फरमाया कि औरतों का दायरे कार क्या है, औरतों का दायरे कार क्या है। ये बहुत बड़ा मसला है। उम्मत की खवातीन ऐसा लगता है कि भूल बैठी। मगरिबियत का नारा, यूरोप का नारा, लिबरलों का नारा मेरे भाइयों, और आज बहुत सारे इस्लामियों के मेरे भाइयों जो नजरियात है वो इन्हीं लोगों के साथ साथ क्या हो रहे हैं, जम होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे मुसलमानों की तरफ से भी आज इसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, भाई औरतों को मर्दों को अलग थलग मत करो। जैसे औरतों का हक है हुकूमत में सियासत मर्दों का, वैसी औरतों का भी हक है। कैसे हो सकता है मेरे भाई, कैसे हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को अलग फितरत के मुताबिक पैदा किया। दोनों की अलग अलग तबीयत है, दोनों की अलग अलग जिस्मानी साख्त है, बनावट है, दोनों की अलग अलग अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारियां उनकी अपनी मिजाज और तबीयत और खिलकत के एतबार से रखी। मर्द की तखलीक अलग अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई और औरत की तखलीक अल्लाह ने अलग अंदाज में फरमाई। मर्द का काम अल्लाह ने अलग रखा है, दायरे का अलग रखा है, औरतों का दायरे का अल्लाह तआला ने अलग रखा है। कैसे हो सकता है कि दोनों को सेम सेम कर दिया जाए? बहरहाल हालात इस वक्त तो बहुत खतरनाक हैं, और तहरीक आजादी निस्वा जो आप बहुत जमाने से सुन रहे हैं कि औरतों की आजादी की तहरीक चलाई जा रही है, इनको घर में बंद रखा है, इनको पर्दे में कैद रखा है, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस्लाम बड़ा जुल्म करता है औरतों के ऊपर, मर्दों की शाना बशाना चलना चाहिए, और फेमिनिज्म वगैरह का बड़ा मसला चलता रहा है। उन तफसीलात में जाएंगे तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह की मसाइल पर मेरे भाइयों बहुत अच्छी तरह से पढ़ने और जानने की जरूरत है। इस सिलसिले में एक किताब अरबी में भी है बड़ी अहम, और वो अल्लामा बकर बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की किताब, जिसका नाम है हिरासतुल फजीला। हिरासतुल फजीला यानी फजीलत की चौकीदारी। अल्लाह ने जो औरत को फजीलत अता फरमाई, फजीलत, हया, मकाम, अज़मत, उसकी चौकीदारी, उसकी सिक्योरिटी, कि मतलब उस पर कोई डाका ना डाले, उसको कोई छीन ना ले, उस पर कोई हमला ना कर दे, उसे कोई मजरूह ना कर दे। इस मसले पर एक बहुत ही अजीम शान किताब है। अरबी में है वो किताब, उसके तर्जुमे भी गालिबन उर्दू वगैरह में तो हो चुके हैं, अंग्रेजी भी हो गए होंगे या और भी जबानों में भी। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये सबसे पहला मसला है, औरत अपनी जात के तई कौन सी जिम्मेदारियां उसको अदा करनी है, दायरे कार तय करना है। मैं अपनी माओं से, बहनों से खास तौर पर, और आप गार्जियन से, सरपरस्तों से खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि औरतों के सिलसिले में उनका दायरे कार शरीयत के मुताबिक हमें जानने की जरूरत है, और उसी के मुताबिक चलने चलाने और उसी की पाबंदी करने कराने की जरूरत है। हम दुनिया के हालात में रंग ना बदल दें, अपना रंग ना बदल दें, अपना रास्ता ना बदल दें, हम आजाद ना हो जाए, कि इसका अंजाम, इसका नतीजा बड़ा खतरनाक है। ये सारे मौजूआत तफसील तलब है, देर तक बैठे बात करें, डिस्कस करें, इस तरह के मौजूआत हैं। लेकिन मैं सिर्फ इशारा कर लूं कि देखिए, औरत का दायरे कार क्या है जानते हैं? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में करार रखो, अपने घर में करार रखो। करार दो माने में है। एक माना है करार यानी ठहरना, अपने घरों में ही ठहरी रहो। दूसरा माना क्या है? अपने घर में ही वकार के साथ रहो, क्योंकि कुरान करीम की आयत करीमा वक़र्न भी है, और दूसरी किरत जो दुरुस्त किरत है वो है वक़िरन फ़ी बुयूतिकुन्ना। हमारी हफ्स में नहीं है, दूसरी किरत। मेरे भाइयों, माना क्या है उसका? औरतों को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की बीवियों को, बेटियों को हुक्म दिया गया अपने घरों में करार रखो, अपने घरों में ठहरी रहो।
वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, वो पहले वाली जो जाहिलियत, इस्लाम से पहले वाली जो जाहिलियत है ना, मुतलक जाहिलियत, आम जाहिलियत, उसमें जो औरतें एकदम आजादाना मेकअप और बनाओ सिंगार और बन ठन करके निकलती थी, खबरदार उस तरह से तुम हरगिज मत करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने घरों में ठहरी रहो, या अपने घरों में इज्जत और वकार के साथ रहो। घर में रहना वकार है, घर में रहना इज्जत है। और इस हवाले से इस तरह की बातें जब बयान की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं ये समझ से बाहर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि औरतों को घर के अंदर ही रहना है। अमली मिसाल, अमली नमूना, अमली दलाइल भी आप समझें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर रिवायत है, और खुद सहाबा सहाबियात इस रिवायत को जानते थे, बयान करते थे, अमल करते थे। वो क्या? इन अल्लाह कद अमरकुन्ना अन तखरुजना लिहवाइजिकुन्ना कद अज़िना लकुन्ना अन तखरुजना लिहवाइजिकुन्ना। अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम्हें जब हाजत हो, जरूरत हो, तब आप बाहर निकले। देखा, यानी गैर जरूरी औरत को बाहर से, घर से बाहर जाने, यहां वहां घूमने फिरने की हरगिज इजाजत नहीं, ये दुरुस्त नहीं है उसके मिजाज और उसकी इज्जत आबरू, उसकी हया के एतबार से। आपने शायद सुना हो लंबा वाकया हजरते अशहलिया का, अशहलिया, और वो लंबी हदीस है। खुलासा उसका मैं आपको बताता हूं। खुलासा ये कि यजीद क्या कहा, उम्मे यजीद इब्न सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल अशहलिया, ये कुछ औरतों के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, और जो औरतें साथ में थी वो घर के दरवाजे के बाहर मस्जिद के रुक गई, और ये जो है वो अंदर आई। अंसारिया सहाबिया है ये, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मस्जिद में आई, देखा कि अल्लाह के नबी के साथ चंद सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने एक पेशकश की। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अच्छी तरह से आप भी सुनना, और हमारी माओ बहनों से गुजारिश कि खास तौर पर सुने, क्योंकि ये आइडियल है, ये सहाबियात। हमारी माओ बहनों के आइडियल कौन है? उम्मत की सहाबियात, अज़वाजे मुतहहरात, बनाते रसूल, बनाते सहाबा, ज़ौजाते सहाबा, ये हमारी माओ बहनों की आइडियल। आजकल की दुनिया में न देखें, अपने आइडियल को देखें। हम बार बार सरफ की बात करते हैं, हमारे असलाफ, क्या मतलब इसका? क्या औरतें आजाद हैं इससे? औरतों का सलफ कौन है? उनकी इज्जत और आबरू और उनके अपने दायरे के हिसाब से, दीन ईमान अकीदे के हिसाब से तो है ना, पूरे असलाफ सहाबा सहाबियात सब, लेकिन बहैसियत औरत और खातून, उनकी इज्जत, उनकी हया, उनकी हिश्मत, उनकी आबरू है ना, इस हवाले से कौन आइडियल है उनका? आजकल की ये खेल तमाशे और फिल्में और फला और मॉडल, और ये आइडियल। मेरे भाई आज हालात कितने खराब हो गए। और उसी मुल्क के अंदर आपने सुना होगा पिछले सालों में सुना होगा, औरतों ने बाकायदा मुआवजा किया, पूरा मुआवजा किया। ऐसे कैसे हमको अंदर रहने की बात कही जा रही? ऐसे कैसे हमको कहा जा रहा है? ये नहीं, अंदर रहने की बात तो जाने दो, कपड़े, लिबास, पहनावा, इसके अंदर बेहयाई आ गई है, उसके अंदर उरियानियत आ गई है, नीम उरियानियत आ गई है, और गैरों की नक्काली आ गई है, मुशाबहत आ गई है। फिल्मों में काम करने वालियां और मॉडलिंग करने वाली, उनकी नक्काली आ गई है मुसलमानों की खवातीन और बहनों बेटियों के अंदर। इसके खिलाफ जब लोगों ने समझाया तो औरतें बाकायदा महाज बना करके आंदोलन करने के लिए रोड पर आ गईं, और बाकायदा बैनर लेने करके औरतों ने मुआवजा किया। और उसमें से ये भी देखने को मिला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? और मेरे भाइयों, अब ये सब बात तो लंबी है, मैं उसमें नहीं जाता। बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि हालात कितने खराब हो गए। ये जिनकी बात में अर्ज कर रहा हूं मैं, इन्होंने आकर के अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी सवाल है, आपसे सवाल है, और ये सवाल और जवाब अल्लाह के नबी का अच्छी तरह से आप भी सुने, हमारी माए बहनें भी। तो अल्लाह के सवाल ये है कि ये आपके सहाबा है, मर्द हजरात, ये आपके साथ रहते हैं, आपके साथ जंग में शरीक होते हैं, आपके साथ जुमे की नमाजों में शरीक होते हैं, आपके साथ 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करते हैं। अल्लाह के नबी अगर कहीं जनाजा किसी की मौत हो गई तो जनाजे के अंदर शरीक होते। इन तमाम बाहर के जो है ना काम, बाहर के काम, मस्जिदों में निकल करके बाहर जमात के साथ जुमे की नमाज और जनाजे की नमाज और जंग और जिहाद, इन तमाम कामों में ये मर्द हजरात शरीक रहते हैं। हम औरतों का दायरा तो अंदर है घर का, हमको तो ये सारे मौके नहीं मिलते हैं।
मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि औरतों का दायरे कार समझो कि सहाबियात ने कैसे समझा, उनका दायरे अमल क्या है, उन्हें कहां तक रहना है, क्या जिम्मेदारी है उनकी। उन्होंने आकर के चूंकि सीखा था अल्लाह के नबी के सहाबा से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से कि औरतों का दायरे अमल क्या है, ये तय था और बाकायदा नाम लिया। अल्लाह के नबी, हम औरतों का मसला क्या है कि हम लोग घरों के अंदर रहती, क़वाइद बुयूत, क्या कहा, हम अपने घरों में बंद रहने वालियां हैं। हमारा जो दायरा क्या है, अपने घरों के अंदर रहती। और क्या कहा, हम अपने शौहरों के हुकूक अदा करती। और क्या कहा, हम अपने बच्चों की, जो हमारे शौहर हैं, उनकी खिदमत, अपने बच्चों की तालीम तरबियत और उनकी देखरेख का काम करती हैं। हमारे शौहर जब सफर करने के लिए कभी कहीं जाते हैं तो उनके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेती, हम देख रेख करती हैं। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। अल्लाह के नबी, अब मसला ये है कि जो मर्द आपके साथ जिहाद और जमात और जुमे की नमाज और जनाजे में शरीक होते हैं, इनको तो बड़ा सवाब मिलता है, अजर मिलता है, जगह जगह सवाब ये पाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये काम नहीं है, हमारे लिए घर का काम है, अपनी इज्जत व आबरू, घर के अंदर बंद रहना, बच्चों की देखरेख करना, शौहर की खिदमत करना, उनकी इताअत का काम करना और घर में रह करके नमाज रोजे जो भी हम करती, ये हमारा काम है। अल्लाह के नबी, ये जो इनको बाहर वाला सवाब मिल रहा है, इनको जो बाहर वाला सवाब मिल रहा है, क्या हमको इस अंदर रह करके जो काम हम कर रही हैं और हमारा जो दायरा है उसमें हम काम कर रही, क्या हमको वो सवाब मिलेगा? कितना अहम सवाल था, ये सवाल ही नहीं था। अल्लाह के नबी, ये बाहर निकलते तो हमको भी निकलने दो। ये कहा औरतों ने, हमको इजाजत दी जाए बाहर घूमने और पार्किंग और होटलिंग मॉडलिंग, ये तो अलग बात है। ये नहीं कहने के लिए आई थी वो अंसारियात सहाबियात, अल्लाह के नबी, हमको भी परमिशन मिलनी चाहिए, हम भी जमात के साथ, हम भी जुमे में आपके साथ में रहेंगे, हम भी जनाजे की नमाज में शरीक होंगी, हम भी जिहाद के अंदर शरीक होंगी। इसका डिमांड करने नहीं आए थे। अल्लाह के नबी, हमारा दायरे अमल आपने ये तय किया है, मर्दों के लिए ये सब नेकियों के बहुत सारे रास्ते, इनमें हम इनसे अलग हो जाते हैं। अल्लाह के नबी, क्या हमारे अपने काम के बदले में वो सवाब मिलेगा जो मर्दों को इन बाहर के नेक कामों का सवाब मिलता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने क्या क्या माना? अल्लाह के नबी ने सहाबा की तरफ पहले मुखातब होकर के पूछा, साथियों ये बताओ, आज तक किसी औरत को इतना ज़हीन फतीन तुमने किसी को देखा है? इतना इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली खातून, इतना अहम सवाल कर रही, इतना पुख्ता अक्ल, इतनी गहरी सूझबूझ रखने वाली खातून को आज तक कभी तुमने देखा है? ये सवाल कर रही हो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, आज तक किसी ने इतना गहरा और सवाल, इतना गहरा और यानी सूझबूझ का सवाल करने वाला हमने किसी को नहीं देखा। उस बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ जाओ, इन्ना हुस्न तबअ्उल इहदाकुन्ना, तुम्हारा कोई भी खात, और उन्होंने भी कहा था अल्लाह के, मैं अकेली आई हूं आपके पास रिप्रेजेंटेटिव, है ना, नुमाइंदा बन करके, जैसे मैं कह रही हूं आपके सामने, एकदम यही बात बाहर कई औरतें खड़ी हैं जो आपके पास मुझे भेज कर से करके सवाल करना चाह रही हैं। आप बताइए कि हमको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ जाओ, जो कुछ तुम अपने घर के अंदर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हो, इसका बिल्कुल वैसे ही तुम्हें सवाब मिलेगा जो बाहर मर्दों को इन सारी नेकियों का सवाब मिलता है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन करके मारे खुशी के मचलती हुई बाहर निकली और जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई मसला नहीं, अल्लाह की तरफ से हमारा दायरा ये है और अल्लाह की तरफ से मर्दों का दायरा ये है, हमें अपने दायरे में रह करके अल्लाह तबारक व तआला वो सारे सवाब अता फरमाएगा जो मर्दों को बाहर के नेक कामों का मिलता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, भाइयों से भी बहनों से भी, ये औरतों का दायरे अमल है। पहली जिम्मेदारी क्या है? इज्जत और आबरू की हिफाजत, अपना दायरे अमल तय करना, जानना। अच्छा, अब इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए वो सारी शर्तें अभी हमारे फाजिल शेख दुस्तूर अर्ज कर रहे थे, है ना, कि इस्लाम 5 जरूरात की हिफाजत करने के लिए, उसमें से क्या है? नसब की हिफाजत, इज्जत और आबरू की हिफाजत। अगर ये सब ना रहे, जनाकारी बदकारी फहाशी हो, तो पता भी नहीं चलेगा कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसकी है, कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे शेख ने औरत की मिसाल भी दी, याद रखे ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। अब आप देखिए, खुशबू लगा करके बाहर निकलना, बगैर महरम के सफर करना गलत, खलवत में रहना, है ना, पैर को मार करके चलना, या ऐसे मिसाल की तरफ बातचीत में लचक पैदा करना, इस सारी चीजें मना कर दी गई। मना कर दी गई क्यों? ताकि इज्जत की हिफाजत। तो पहली जिम्मेदारी खवातीन की क्या है? अपनी जात की हिफाजत की जिम्मेदारी। आजकल के फितनों के दौर में यह जिम्मेदारी ज्यादा खतरनाक हो गई है। और खतरनाक मसला है इज्जत और आबरू का मसला। और
मीडिया के रास्ते से जो खबरें हमको सुनने को मिलती है, उससे तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। बेपर्दगी हो, बेहयाई हो, और ये सोशल मीडिया का जो रास्ता है, अंदर घर के अंदर बैठने वाली खातून भी इसके जरिए से बाहर नहीं, अंदर नहीं है, बाहर है, और कंट्रोल से बाहर है, दायरे से बाहर है। किसके साथ ताल्लुकात, किसके साथ बातचीत, किसके साथ चैटिंग, किसके साथ कांटेक्ट, अल्लाहु आलम, किसी को नहीं मालूम। बाप को नहीं मालूम, बेटी को नहीं, बाप को नहीं मालूम, माँ को नहीं मालूम, भाई को नहीं मालूम, किसी ताल्लुकात। हम अपनी जिम्मेदारी भी अदा नहीं कर पाते, हम चेक भी नहीं कर पाते मेरे भाइयों, हम पता भी नहीं लगा पाते, हम कोई कंट्रोल भी नहीं रख सकते इसके ऊपर। और उसके बाद जब हमारे सामने वो खबर आती है ना, फला के साथ रिश्ता कर लिया, बगैर वली के निकाह हो गया, कोर्ट से निकाह हो गया, किसी हरामखोर मौलवी ने 2000 रुपए लेकर के निकाह पढ़ा दिया, तब जाकर के हमारी आंखें खुलती हैं। मैं आपसे बहुत इशारे में अर्ज कर रहा हूं, और सारी खबरें आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, बाकायदा मेरे भाइयों कोर्टों के पेपर आते हैं सोशल मीडिया पर। बच्ची आयशा, फातिमा, कहकशां, राजी, नाम मुसलमान बच्चियों के, और आगे नाम मेरे भाई। अब दो मसले हैं आगे। एक मसला तो यह है कि बगैर वली के निकाह, बगैर वली के निकाह, अब बगैर वली के निकाह किससे हो रहा है? दो शक्लें, या तो मुसलमान बच्चा है, मुस्लिम है, मुस्लिम है तो भी बगैर वली के निकाह करना इस्लाम के अंदर वैलिड। बगैर वली के निकाह बातिल, बातिल, बातिल का मतलब समझते हैं? निकाह बातिल, इसका मतलब क्या है? मतलब वो हुआ ही नहीं, नहीं हुआ, नहीं है, यानी जाये है। हम क्या कहते हैं? उसका अमल जाये हो, उसकी नमाज बातिल है। क्या मतलब? उसने पढ़ा तो है लेकिन इस कमी की वजह से वो नमाज 0-0 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यह है कि निकाह बातिल, उसका निकाह बातिल, उसका निकाह बातिल, अल्लाह के लिए नहीं समझ। क्या मतलब? नहीं, बगैर वली का निकाह हुआ है, किया गया है सामने, लेकिन वो निकाह हुआ ही नहीं, 0। अब बगैर निकाह के अगर दोनों खलवत में होते हैं, दोनों ताल्लुकात कायम करते हैं, इज़्दिवाजी ताल्लुकात या जिस्मानी ताल्लुकात, जिनाकारी है कि नहीं जिनाकारी है? ये जिनाकारी है, फहाशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बगैर वली का निकाह नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इतना खैर है कि कम से कम वो लड़का कौन है? लड़का मुसलमान है। अल्लाहु आलम, हकीकत भी अंदर की बात कोई नहीं जानता। आज सब पर पर्दे हो गए, हर जगह खयानत है, हर जगह निफाक है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, उसके अलावा हमें खबरें मिलती हैं गैर मुस्लिम के साथ, किसी यहूदी के साथ, किसी बुत परस्त के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ मुस्लिम बच्चियां निकाह के रिश्ते बच रही, कोर्ट के साथ, उसी मोहल्ले में, उसी चाली में, उसी सोसाइटी में आकर के एक रूम किराए पर लेकर के लोग रह रहे हैं। मेरे भाई, उस वक्त मां बाप पर क्या बीतती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का पेपर है उनके पास, अगर आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहा, 18 साल के बाद एक्ट कहता है कि वो आजाद है। समझ रहे? ये है। अब हमारी मुश्किल क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारियां इसमें अदा नहीं करते। हम शुरू में कहा था मौजूद औरतों से मुताल्लिक है, लेकिन सिर्फ वही नहीं सुनेंगी, आप भी सुनेंगे, आप भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, क्योंकि बगैर गार्जियन के औरत किसी जिंदगी के किसी भी मरहले में नहीं होती है। आप बाप हैं तो किसी न किसी बच्ची के खातून के वली हैं, आप शौहर हैं तो जिम्मेदार हैं, हर सूरत में कोई ना कोई जिम्मेदार है। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि सबसे पहली जिम्मेदारी कि अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। दूसरी जिम्मेदारी, मुख्तसरन बात कर रहा हूं, इसमें बात लंबी हो गई। होना क्या चाहिए? होना, देखो वो वाकया मैं अक्सर इशारा करता हूं, हया का मामला, इज्जत और आबरू का मामला, हजरत फातिमा की जिंदगी देखो। फातिमा ने इस पर भी अपने आप को मुतमईन नहीं किया कि मौत के बाद नाश पर जब उनको ले जाया जाएगा कब्रिस्तान, तो जिस्म पर जब चादर डाली जाएगी तो कहते हैं तूली व आरज़ी, तूली व आरज़ी। कहने लगी, हमना बिनते जहज से कहने लगी, मुझे टेंशन ये है कि मरने के बाद जब मेरी लाश को जब नाश पर, तख्त पर रख करके कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और मेरे जिस्म पर चादर डाली जाएगी, तो मेरी लंबाई लोगों को मालूम पड़ेगी, और मेरे जिस्म का, मेरा डील डोल, मेरे जिस्म की साख बनावट, ऊंच नीच, कद छोटा है, कद लंबा है, मोटा है, जिस्म पतला, मालूम पड़ेगा। मुझे उसका टेंशन है। ये हालत थी उनकी, समझ रहे हैं? और इससे बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे नमूने हैं, उसका ये मौका नहीं। अर्ज करना चाहता हूं कि वो तरबियत जब थी, औरतें अपनी जिम्मेदारियां समझती थी, तो वो मंजर हमारे सामने आता है। और आज का मंजर ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपको कोई कंट्रोल नहीं, मैं अपनी जिस्म की मालिक हूं, मैं जो चाहूं करूं, जहां चाहूं जाऊं, जो जिसके साथ राब्ता कायम करना चाहूं राब्ता कायम करूं। ये सूरत हाल हो गई।
दूसरी की जिम्मेदारी है वो है तालीम और ताल्लुम की, तालीम और ताल्लुम की, यानी खुद पढ़ने और सीखने की। दीन का इल्म हासिल करना जिम्मेदारी है उसकी, दीन का इल्म हासिल करना जिम्मेदारी है। इसलिए कि उम्मत की खवातीन, उम्मत की सहाबियात और उसके बाद ताबईयात की जिंदगी हम पढ़े, इल्म से उनका रिश्ता बड़ा गहरा होता था। इल्म हासिल करना जिम्मेदारी है। अच्छा, ये भी याद रखें कि भाई बचपन गुजर गया, नहीं पढ़ा लिखा गया, जो भी हालात थे घर के माँ बाप के नहीं मालूम, लेकिन पढ़ने की उम्र तो कभी मौत से पहले खत्म नहीं होती है। कब्र से पहले पहले कभी पढ़ने की उम्र खत्म नहीं होती। कोई बात है, शादी हो गई तो बोला, शादी के बाद भी आप इल्म हासिल करें, आप इल्म हासिल करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला, अगर माँ जाहिल है, जाहिला है, तो फिर याद रखें कि पूरी कौम जाहिल बन करके निकल सकती है। इसीलिए किसी ने कहा था, अल उम्मु मदरसतुन इज़ा आदतहा आदत शअबन तय्यिबल आराकी। अगर एक माँ अच्छी तैयार कर लिया है तो समझ लो कि एक पूरा पॉपुलेशन और पूरा मुल्क एक तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता तैयार कर ले जाओगे। समझ रहे? माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है, हमने शॉर्ट कर दिया ना। माँ, औरत माँ की हैसियत से तो इस्लाम में ये मकाम है, औरत बाप बीवी की हैसियत से तो उसका ये मकाम है, औरत बहन की हैसियत से तो उसका ये मकाम है, औरत बेटी की हैसियत से तो उसका ये मकाम। बहुत सारी दलीलें हैं हर पहलू पर, है ना। उनको पालने पोसने तरबियत देने की इतनी सारी फजीलत है। जो भाई पाले अपनी बहन को, जो बाप पाले पोसे अपनी बेटी को, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नत की बशारत है, जहन्नम से आजादी और जहन्नम की आग से बचने की खुशखबरी। वो सब बातें हमने शॉर्ट कर दी। अर्ज कर रहा था तालीम का मसला बहुत इंपॉर्टेंट, इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करना। अब इस सिलसिले में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बहरहाल आयशा तो शायद कोई पैदा हो उनके जैसा, क्योंकि ऐसा ज़हीन फतीन उम्मत के लिए, उम्मत की खवातीन के लिए मेरे भाई आइडियल कोई नहीं मिलेगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बचपन से बेपनाह ज़हीन फतीन थी। अल्लाह ताला ने उन्हें मुंतखब किया था इस मकसद के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस कदर इल्म हासिल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रह करके। उनसे पहले उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी वालिदा उम्मे रूमान, और मतलब इल्म। आखिर वो हदीस, वो रिवायतें हमारे सामने अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन शिहाब अज़्ज़ुहरी रहमतुल्लाहि अलैह, और उसके बाद उसी तरह से इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी सराहत के साथ लिखा। इतनी बड़ी आलिमा फाजिला थी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा कि उनके इतना बड़ा उनके जैसा कोई आलिमा सोच भी नहीं सकता। और क्या कहा, लौ जुमिअ इल्मु आइशा इल्मी इला इल्मि निसाइल उम्मा, अगर आयशा का इल्म, तन्हा आयशा का इल्म और पूरी उम्मत का इल्म इकट्ठा कर दिया जाए तो आयशा का इल्म तन्हा पूरी उम्मत की खवातीन के इल्म पर भारी हो जाए। इस कदर इल्म, और इसीलिए उनका नाम हमेशा क़यामत तक लिया जाता रहेगा। और बहुत ज्यादा इल्म और तालीम और तरबियत की सराहना करने वाली निअमन निसाउ निसाउल अंसार लम यमनाहुन्नल हया व यतफक्कहन फिद्दीन, बड़ी अच्छी औरतें हैं अंसारी खवातीन, अंसार की खवातीन, अंसार की औरतें बड़ी अच्छी औरतें हैं। हया और शर्म जो है ना, हया और शर्म इल्म हासिल करने के रास्ते में कभी आड़े ना आया। हया अलग चीज है और इल्म हासिल करने के लिए हया की कोई मामला, हया की तरफ, हया के नाम पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इल्म हासिल करने में हया नहीं है। इल्म हासिल करें, सीखें, पढ़ें, अदब और दायरे में रह करके, बिल्कुल ये मतलूब है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इल्म बड़ा अजीम शान था, बड़ा इल्म हासिल किया उन्होंने। और यही नहीं, हत्ता कि उन्होंने ऐसे सहाबा किराम बयान करते हैं, सहाबा किराम ताबईन बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कोई भी मसला लेकर के जाया गया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा इस मसले में आप बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है, मौक़िफ़ क्या सही है, तो कहते हैं कि जो भी मसला उनके पास गया जरूर उस बारे में उम्मुल मोमिनीन की तरफ से इल्म हासिल हुआ, इल्म मिला। सहाबा किराम लाइन लगा करके मसाइल पूछें, उनकी खादिमात के जरिए से वास्ते से लोग क्या करें, खत लिख करके मसाइल पूछते थे। सहाबा किराम से बाद मसाइल में जो इज्तिहादी गलती हुई है, ऐसे मसाइल का इस्तिदराक किया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। इमाम ज़रकशी ने, जिनकी वफात 774 में, जैसे इमाम इब्न कसीर की हुई है, 774 में इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाहि अलैह ने किताब लिखी अल इजाबा
फी मस्तदरकत आइशा अल सहाबा, जिन मसाइल में सहाबे किराम से चूक हुई है या इज्तिहादी गलती, ऐसे मसाइल को इकट्ठा किया है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, इस्तिदराक किया, ताक़ुब किया और इमाम ज़रकशी ने उसे इकट्ठा किया किताब के अंदर इस तरह। और दूसरा जो मसला क्या है वो है इल्म दीन। अब इल्म का मसला जब आता है तो फौरन ये मसले हमारे सामने मेरे भाई अल्टीमेटली आ जाते हैं। इल्म तो कौन सा इल्म, इल्म तो कौन सा इल्म? जो बात अभी तक चल रही थी वो इल्म दीन से मुताल्लिक। एक बात अच्छी तरह समझ लो, कुरान में सुन्नत में जहां जहां इल्म की फजीलत आई है, अच्छी तरह सुनना, माएँ भी बहनें भी और आप भी, कि कुरान में सुन्नत में जहां भी इल्म की फजीलत आई है, उलमा की फजीलत आई है, इल्म का मकाम दुनिया में, उलमा का मकाम दुनिया में, इल्म और उलमा का मकाम आखिरत में बयान किया गया, जहां भी फजीलत आई उससे मुराद अल्लाह की दीन का इल्म है। फजीलत जिस इल्म की आई वो कौन सा इल्म? दीन का इल्म, कुरान का, सुन्नत का, अकीदे का, तफसीर का, है कि नहीं, सीरत का, मसाइल का, मिरास का, और जो भी उलूम शरीयत जो भी है, उलूम शरीयत। और इमाम अल्लामा अब्दुल मुहसिन बिन हमद अल अब्बाद, हमारे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने एक किताब लिखी है, छोटी सी किताब, बहुत सारी छोटी किताबें उन्होंने लिखी, उसके अंदर वो लिखते हैं, इसी बात को कहते हैं कि जहां भी किताब और सुन्नत के अंदर इल्म की फजीलत, उलमा की फजीलत आई है, उससे मुराद इल्म दीन है, इल्म शरीयत। अब रहा मसला, ये जो उलूम हम हासिल करते हैं, हमारे बच्चे हासिल करते हैं, इन उलूम के बारे में शरीयत क्या कहती है? शरीयत किसी भी इल्म को उस वक्त तक हासिल करने से मना नहीं करती जब तक कि वो इल्म इंसान को अल्लाह से, अल्लाह के दीन से दूर ना करे। जायज है, आदमी मेडिकल साइंस पढ़े, इंजीनियरिंग करे, टेक्निकल, मैकेनिकल, जो भी आप करें, इल्म हासिल करें, कोई मना नहीं। शर्त यही है कि वो इल्म अल्लाह के दीन से न टकराए, अल्लाह के दीन से दूर न करे, अल्लाह ताला इंसान को मुल्हिद न बनाए, बेदीन न बनाए, इंसान इबादत से गाफिल न हो जाए, हलाल और हराम को पामाल न कर दे, अल्लाह की तौहीद को ज़ाय न कर दे, समझ रहे? अल्लाह तबारक व तआला की फराइज की, दीन की फराइज की, वाजिबात की अदायगी में हायल ना हो जाए, रुकावट ना बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला का दीन दुनियावी उलूम हासिल करने की भी इजाजत देता है, रुकावट नहीं है इसके अंदर। लेकिन याद रहे, दोनों एक दर्जे में नहीं हो सकते कभी भी, ये गलती तो कभी करना नहीं। और सर लोग इल्म की बात करने पर आते हैं, दोनों को सेम करना, साबित करना चाहते हैं, बोले इल्म वो भी है, इल्म ये भी है। फिर ऐसे हो गया कि कुरान और सुन्नत का जो दर्जा है वही दर्जा आपकी साइंस का है, आपकी ज्योग्राफी का भी, आपके मैथमेटिक्स का भी है, आपके सोशल साइंस का भी है। क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो अल्लाह तबारक व तआला का उतारा हुआ इल्म है, वही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और ये लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, लोगों की अपनी उपज है, लोगों की अपनी अक्लों की इजाद है। दोनों कैसे एक दर्जे में हो सकते हैं? कुरान और सुन्नत को, शरीयत को हम पढ़ेंगे, इस मजलिस से हम बैठे में सबका सवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अगर साइंस पढ़ते सवाब मिलता नहीं मिलेगा, समझ रहे आप? इसे याद रहे कि ऐसे बराबर नहीं कर सकते, लेकिन लोग बराबर करना चाहते हैं। तो दीन का इल्म मुकद्दम है, आप दुनिया में उलूम सीखें, सिखाएं, अल्लाह के दीन में इजाजत है, लेकिन अल्लाह का दीन पामाल ना हो, अल्लाह की फराइज पामाल ना हो, दीन से नफरत ना हो, इल्म दीन से नफरत ना हो, उलमा से नफरत ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की दीन पर चलते हुए, अल्लाह के दीन से वाबस्तगी के साथ, और उसका इल्म, बुनियादी इल्म हासिल करने के बाद, दीन का बुनियादी इल्म हासिल करने के बाद, आदमी को तौहीद का पता नहीं है, शिर्क का पता नहीं है, फराइज का पता नहीं है, आदमी बड़ा सा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, फला है, सब ठीक है, लेकिन उन सबसे पहले क्या सीखना था? मारिफतुल अब्दी रब्बहु, मारिफतुल अब्दी दीनहु, मारिफतुल अब्दी नबियहु व रसूलहु। अल्लाह को पहचानो, अपने दीन को पहचानो, अपने नबी को पहचानो, ये सबसे बुनियादी मसला है। हमको दीन के फराइज का पता ना, हमें तौहीद का पता ना हो, आप बताइए कितनी खतरनाक बात है। आदमी यहां बड़ी डिग्री लेकर के दुनिया में तरक्की कर रहा है और इधर दीन की बुनियादों को भी नहीं जानता, गुमराही हो रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है, इन्हिराफ की तरफ जा रहा है। और ये अलमिया उम्मत का बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। दुनिया में बड़ी बड़ी शोहरत और मकबूलियत हासिल करने वालों ने, जिनके पास दीन का ठोस इल्म नहीं था, वो बह गए, भटक गए, कदम फिसल गए, उम्मत को गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। बड़े बड़े स्कॉलर, इसलिए कि दीन की बुनियाद का इल्म उनके पास नहीं था। और ये बहुत खतरनाक मसला है, और मैं इस पर बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ, हमारे पूर्वी शेख ने बहुत बार इस मसले को समझाया है, उनकी किताब भी है उन लोगों के बारे में जो दीन के उलमा नहीं है, आउटसाइडर हैं, अलग अलग मैदानों की जानने वाले, अलग अलग डिग्रियों के हामिल हैं, और वो दीन और दावत के काम में घुस आए। इसका नुकसान बहुत ज्यादा है।
अब इस पर मैं बात नहीं करना, मैं अर्ज करना चाहता हूं यहां पर एक अगले मरहले की बात, और वक्त भी खत्म हो रहा है। एक अगली बात जो आपके सामने अर्ज करनी है खवातीन की जिम्मेदारियों के तई, वो ये है कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करें, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करें। मुख्तसरन अगली बात, अपने शौहर की है ना खिदमत और इताअत को कभी भी, मेरे भाई आदमी क्या होता है मालूम आपको, आज तो ऐसा लगता है कि हर चीज मादी हो गई। अगर बड़े दौलतमंद घराने से अगर लड़की औरत का ताल्लुक है तो ऐसा समझती है कि मेरे शौहर की खिदमत और उसकी इताअत मेरी जिम्मेदारी से बाहर है। कितनी खतरनाक बात है। वो रिश्ता मियां बीवी का है, ज़ौजैन का रिश्ता है। आपकी दौलत और इल्म और जहालत से और फक्र से कोई लेना देना नहीं है उसका। आप किसी ने मेयार की है, आपकी भी जिम्मेदारी शरीयत मुकर्रर की वो आपको अदा करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, 4 बातों का जिक्र किया था और अक्सर वो हदीस आप सुनते रहते, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा, और क्या फरमाया था, व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा क़ीला लहा उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति, उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिहा शि'ति। औरत अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा करे, मोमिना सालिहा, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, मोमिना का, सालिहात का, ताइबात का, और सब तफसीलात हमने छोड़ा है, सब बयान नहीं किया आपके साथ। याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब ईमान वाली हो, तौहीद परस्त हो, अल्लाह की सच्ची दीन को समझने जानने वाली हो, सही अकीदे पर कायम हो, उसके बाद जब 5 वक्ता नमाज पढ़े, क्या करे, फराइज की पाबंदी। बहुत बड़ा मसला है ये खवातीन में बहुत बड़ा मसला है। नमाजों का एहतिमाम नहीं पाया जाता, आम तौर पर नमाजों का एहतिमाम नहीं। आपके ऊपर जमात फर्ज नहीं है, जमात आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको वक्त पर तो नमाज पढ़नी है घर के अंदर। अब यहां मसला तरबियत का फंस जाता है, तरबियत का मसला ये नाजुक हो जाता है। अगर माँ दीन की पाबंद नहीं है तो किस एतबार से बच्चों को हम बहुत ज्यादा दीन का पाबंद देखना चाहते हैं। बाप का भी मसला है, सिर्फ माँ का मसला नहीं है। मेरे भाई हम सोए पड़े रहे, माँ ना उठे और सोचे कि बच्चा वली बन जाए अल्लाह तबारक व तआला, कैसे हो सकता है। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारा बिहेवियर, हमारी जबान, हमारा किरदार, सब कुछ मेरे भाई बच्चों की तरफ से कैच किया जाता है, कैच किया जाता है। बच्चे जो हमको करते, कहते, सुनते, देखते हैं, वही वो सुनते हैं, वही वो कहते, वही वो करते हैं, उसी के आदी होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा किरदार अलग रहे और गुफ्तार सख्त रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नमाज की पाबंदी न करें, मां नमाज की पाबंदी न करे और मार के बच्चों को मस्जिद भेजे, ऐसा होगा? कुछ नहीं हो सकता। याद रखें, ये आमतौर पर नहीं हो सकता। कोई वाकया नादिर हो जाए तो हो जाए। किसी घराने में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को पैदा करना और किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अहल बनाने के लिए अगर फैसला कर लिया, बात अलग है। लेकिन आमतौर पर तरबियत के मैदान में ये बात तय है, कुदवा, उसवा, आइडियल, नमूना बनने की जरूरत है एक माँ को अपने बच्चों के लिए। और ऐसी बहुत सारी मिसालें, माएं बहैसियत माँ नमूना बन गई तो बच्चों की जिंदगी अलग हो गई। माँ अगर बहैसियत बीवी अपने शौहर के लिए आइडियल बन गई तो अपने शौहर के लिए बहुत कुछ खैर का जरिया बन गई। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, तो एक मसला क्या है, अपनी जिम्मेदारी, 5 वक्त की नमाज पढ़े, माह रमजान का रोजा रखें, अपनी शौहर की इताअत करें, शौहर की इताअत। और इताअत दुनिया में कहीं भी इताअत का लफ्ज आप सुन लेना, एक बात याद रखना, चाहे मर्द हो या खवातीन हो, जवान हो, बच्चे हो या बच्चियां, याद रखना कोई भी इताअत दुनिया की उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक कि वो इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ताबे ना हो। अल्लाह की नाफरमानी, उसके रसूल की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी, किसी की इताअत नहीं की जाएगी। अब ये भी एक अपने आप में एक मसला है, और खवातीन का मसला। अब उसमें हलाल है, हराम है, जायज है, नाजायज है, बात औरतें अपनी शौहरों की हर चीज में इताअत करती हैं, गलत सही नहीं देखती, हराम हलाल नहीं देखती, सही गलत कुछ नहीं, बस शौहर के साथ साथ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही सबको करनी है। अर्ज ये कर रहा था, आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वा अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। इस पर बात हो चुकी है, इस पर बात हो चुकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उससे कहा जाएगा जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। इतनी बड़ी फजीलत किसके लिए? जो औरत अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक अदा करे, अल्लाह ताला के तई जो उसकी जिम्मेदारियां बनती, अपनी आबरू के तई
की शर्मगाह की हिफाजत की बात कही गई, शौहरों की इताअत, अपने शौहरों की इताअत, उनकी देखरेख का मसला, इन तमाम पहलुओं पर जब औरत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी तो ये जन्नत की बशारत है, जन्नत की बशारत। आखिरी बात आखिरी बना लेते हैं इसको। आखिरी बात क्या है? जब अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दीन, उसका इल्म आ गया, हमने उस पर आइडियल बन करके अमल करके दिखा दिया, तो अगला मरहला आता है उसे आगे पहुंचाने का, उसे आगे पहुंचाने का। ये आगे पहुंचाने वाला जो मसला है ना, ये बहुत ज्यादा नाजुक हो गया है आजकल के दौर में, बड़ा नाजुक हो गया है। अब औरतें, जिन औरतों को कुछ तालीम और तरबियत है, उनके पास कुछ खल्फिया है, बैकग्राउंड है, या कुछ वो सीख रही है या सीख चुकी हैं, उनका मसला ये है कि अब वो ऐसा समझती है कि हम बिल्कुल मर्दों से भी ज्यादा आगे बढ़ करके मीडिया के जरिए से काम करेंगे। दायरा आपका तय है, उस दायरे के बाहर आपको किसी सूरत में नहीं जाना है। अब ये मेरी बात या हमारी बातें, हमारे उलमा की बातें लोगों को, खासतौर पर हमारी माँ बहनों को नहीं जमती। हमको दावत का काम करने में पाबंद क्यों कर रहे हैं? जैसे मर्द दावत देते हम भी दावत दे, नहीं, ऐसे कैसे आप दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं। आपका जो दायरा, उसी दायरे में आपको काम करना है, क्योंकि आप उम्महातुल मुमिनीन से, अज़वाजे रसूल से, बनाते रसूल से और सहाबियात से आगे नहीं जा सकती। आप मस्जिद में आकर के लेक्चर करेंगे? नहीं कर सकती आप। अगर कर सकती तो कब कर सकती? जब उम्मुल मोमिनीन आयशा ने किया होता। किया है उम्मुल मोमिनीन आयशा ने लेक्चर किया तो मस्जिद में आकर के? मस्जिद नबी बगल में थी कि नहीं थी? ऐसे कमरा, बीच से दरवाजा था, किनारे सारे कमरे बने हुए थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सीरत में, साबियात की, अज़वाज मुतहहरात सीरत में नहीं मिलता कि कभी उनका दर्स हुआ रहा हो, कभी तकरीर उन्होंने की हो, कभी औरतों को जमा करके लेक्चर किया हो। समझ रहे हैं? इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, आप इस मसले पर गौर करें। इसमें जज्बाती होने की जरूरत ही नहीं, जज्बात की गुंजाइश ही नहीं है। हम पाबंद हैं शरीयत के, मर्द भी पाबंद है, औरतें भी पाबंद हैं। और उनकी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है अपने, अल्लाह तबारक व तआला जो आपको सही इल्म अता फरमाया है, वो इल्म आप पहुंचाएं, लेकिन अपने दायरे से बाहर निकल कर नहीं पहुंचा सकते। अपने घर में, अपने बाल बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोस में, जहां आपको कहीं जाना नहीं, आप किसी मजलिस में कहीं मौजूद हैं, वहां पर आप कोई मुनकर देखे तो उनको समझाएं। कोई अच्छी बात आपको समझाना चाहते हैं तो आप वहां बोलिए, समझे, कोई हर्ष की बात नहीं। किसी घर में बैठ करके आप अगर चाहे 10 औरतें आपके साथ इकट्ठा हो और आप उनको नसीहत करें, कर सकती है, लेकिन मस्जिद के अंदर आपका मुस्तकिल दर्स नहीं हो सकता। अब आपके यहाँ दर्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये दर्स मुस्तकिल औरतों का नहीं चल रहा, ना औरतें दर्स दे रही हैं, ना उनका मुस्तकिल दर्स है। ये दर्स मर्दों का है, और मर्दों के साथ खिताबात मर्द उलमाए किराम कर रहे हैं, और उसके अलावा मजलिस के अंदर बड़ी तादाद में मर्द हजरात हैं, और उनके लिए मुनासिब जगह का इंतजाम किया, जहां औरतें हमारी बैठी हुई, माए बहनें बैठी हुई, और वो भी दर्स के अंदर शरीक है। ये सब दुरुस्त है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर दुरुस्त मस्जिदों के अंदर, या फिर उससे खतरनाक मसला है मीडिया का। जैसे दुनिया में आज है ना, औरतें खड़ी हैं तो खाना पकाने का तरीका बता रही हैं, तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई पूरी तस्वीर के साथ लाइव वीडियो चल रहा है कि नहीं? अच्छा, बाज औरतें पड़ोस की या बाज अंदर की, मुझे नहीं मालूम है, बाकायदा वो बोर्ड लगा करके अरबी सिखा रही है, ग्रामर सिखा रही है, फेल, फाइल, मफूल सिखा रही है, एराब और कवाइद और मबनी और मोरब सिखा रही है। किसने आपको कहा? कहां आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप मीडिया पर आओ बेपर्दा होकर के आप सबके सामने? आपकी आवाज का पर्दा है, आवाज तक का पर्दा है, वो आवाज जो कोई माना नहीं समझाती। यानी अगर आप पैर पटक करके चले, है ना, उससे उसका कोई माना तो नहीं निकलता है ना, आवाज ही आएगी, वो भी आपके लिए दुरुस्त नहीं है। तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं कि आप आए और बेपर्दा होकर के बिल्कुल लाइव वीडियो के सामने खड़े होकर के, और आप चेहरा खोल करके आप सबको शरह कर रही, और जज्बा क्या? बहुत अच्छा तालीम का काम करना, अरबी सिखाने का काम। और जाहिलों की तरफ से आज सारी दुनिया कमेंट पर चल रही है, ये नहीं देते कमेंट करने वालों का मेयार क्या है। अवबाशों के कमेंट से क्या होने वाला है? आपको 10,000 20,000 कोई कमेंट आपका पॉजिटिव कर दे, आप क्या क्यों खुश होते हैं? क्यों खुश होती हैं? और ये अजीब गरीब मसला है। मर्द भी बहुत खुश होते हैं, औरतें भी खुश होती है, नहीं समझते हैं कि ये किस टाइप के लोग हैं, इनकी हैसियत क्या है कि आपको कमेंट सही कर रहे हैं। याद रखें, मोतबर लोग ही आपको मोतबर बना सकते हैं। जिनका खुद को एतबार नहीं है, वो खशो खाशा कचरे की तरह इकट्ठा हो जाए, क्या फायदा होगा आपका? बहरहाल आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें आपको एहतियात करने की जरूरत है। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखारी की रिवायत में एक खातून आई और कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हब अर्रिजालु बिहदीसिक, अल्लाह के नबी
آپ اتنے سارے دروس دیتے ہیں, آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں, یہ مرد حضرات آپ کی مجلس میں رہتے ہیں, سنتے ہیں, اور سب کے سب آپ کی حدیثوں کا علم حاصل کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ, ہم تو اپنے گھر میں رہتی, آپ دائرہ دیکھیے, دائرہ عورتوں کا ہر جگہ کیا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی ہمارا تو یہاں دائرہ ہے, ہم یہاں نہیں آتی ہیں, ان کو یہ فائدہ ملتا ہے, ہم کو نہیں مل رہا ہے, ان کو یہ فائدہ ملتا ہے, ہم کو نہیں مل رہا. عورتیں صحابیات جانتی تھی کہ ہمارا دائرے عمل کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مسئلہ. تو اب کیا کہا اللہ کے نبی, فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا تَأْتِينَا فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. اللہ کے نبی اس لیے ہم آپ سے درخواست کرنے آئی ہیں کہ یہ مرد حضرات تو ہر جگہ آپ کے مجلس میں رہ کر کے آپ سے حدیثیں سیکھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیجئے جس میں آپ آیا کریں اور آپ ہمیں بھی وہ علم سکھایا کریں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. آ کر کے عورتیں اللہ کے نبی درخواست کر رہی, اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کیجئے اور آپ آ کر کے ہمیں تعلیم دیجئے جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی, وہی اللہ نے شریعت آپ کو عطا فرمائی, آپ ہمیں سکھائیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب یہی مسئلہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی دوسرا راستہ کیوں نہیں بتلایا؟ آپ جہاں مسجد نبی موجود تھے اس کے بغل میں خواتین ازواج مطہرات کے کمرے تھے کہ نہیں تھے؟ ان سے بڑی عالمہ دنیا میں کوئی تھا؟ حضرت عائشہ کا, حفصہ کا, ام سلمہ کا, میمونہ کا, زینب کا, زینب المساکین, سب کے کمرے موجود ہیں, اور دنیا میں ان سے بڑی عالمہ فاضلہ نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اگر اتنا تمہیں شوق ہے, چاہت ہے علم حاصل کرنے کا, تو میں عائشہ کو بول دیتا ہوں, ان کا درس ہو جائے گا. کہا آپ نے ام سلمہ کا ہو جائے, حفصہ کا ہو جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا. ٹھیک ہے, آپ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ اکٹھا ہو جانا, فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ اکٹھا ہو جانا, اکٹھی ہو جانا. اور پھر وہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ اکٹھا ہو گئی. اللہ کے نبی آئے بھی, آپ نے تعلیم بھی دی, اور اس کے بعد صحابیہ نے بتایا بھی کہ اللہ کے نبی نے کون کون سی ٹاپک پر بات کیا تھا, آپ نے کیا کیا بتلایا تھا, اور اس میں اتفاق سے جو بات بیان کی گئی تھی وہ آج کے موضوع سے بھی تعلق رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا, اور بچوں کی موت اگر ہو جائے تو جو غم ماں کو ہوتا ہے نا, اس کا اجر اور ثواب کیا ہے. جس عورت کے ایک بچی کی موت ہو جائے, 3 کی, 2 کی, 1 کی بھی روایت آئی ہے, موت ہو جائے بچپن میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے, عورتوں کی کا مقام اللہ نے اسلام میں بلند فرمایا, قرآن میں, سنت میں, اور بہت ساری ذمہ داریاں عورتوں کے حوالے ہیں. یہ ہم نے سرسری 2-3 باتیں 4 باتیں ذکر کی ہیں ماحول کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ولی ہیں, گارجین ہیں, ہمارے ماتحت ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, خواتین ہیں, اور رشتہ دار ہیں, اعزاء اقارب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری ان کے تئیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہم ان سے ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی تاکید کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. ماں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی حمد کریں کہ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے, اللہ کی دین کی مخالفت کر کے کبھی نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ مل سکتی ہے. 2 دن کی میڈیا کی شہرت یہ ختم ہو جائے گی. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو, دنیا کی دوڑ میں مت دوڑو, عورتوں کو مت دیکھ دیکھ کر کے ان کے پیچھے بھاگو. یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.